गुड इवनिंग। आज हम लोग जो लेसन करने वाले हैं, आपको मालूम है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पब्लिक डेट तक पूरा किया था। फिस्कल पॉलिसी हमने किया था 11 चैप्टर। आज हम लोग 12 करेंगे, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आज हम लोग 12 चैप्टर में जाएंगे और 12 चैप्टर है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स देखने हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साउंड फिनांस और फंक्शनल फिनांस की बात की थी। साउंड फिनांस का मतलब मैंने आपको बताया था लेजे फेयर इकोनॉमी। क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज लेजे फेयर इकोनॉमी। लेजे फेयर इकोनॉमी का मतलब है लेट लिव अलोन, जियो और जीने दो। इसका सिंपल एंड फुल फाइनल मतलब है कि भाई private sector will work if they will rule over the market. There is no need for government sector. Government sector will only keep watch on the matter of simply defense, infrastructure and judiciary. Other matters will be handled in the way that private sector can solve it. So these are the few aspects of that policy. Sound public finance. Functional public finance is somewhat different. It's an emerge of new economy. Why I am saying emerge of new economy? It abruptly means, it clearly means new economic policy. Yeah, new economy is giving important to new economy is giving important to following aspect. Aspect number 1, free market economy, demand and supply basis, and all other expenditure will be carried by private sector only. Along with that, government sector will also involved in that. Means transport will be carried by government. For example, railway will be carried by central government. ST will be carried by state government, that is state transport, and again local transport. In Mumbai we have BST, in Pune they have PMT, in Thane they have TMT. In this way, the local transport will also controlled by the local authorities. So slowly and suddenly we can come to know, हमें पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट देखे, जुडिशियरी गवर्नमेंट देखे, उसके साथ साथ सब रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट देखे। इसका मतलब है गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा है। पहले गवर्नमेंट का रोल छोटा था, अभी गवर्नमेंट का रोल एक्सपांड हुआ है। नाउ गवर्नमेंट रोल एक्सपांडेड। It indicates that जैसे आपके गवर्नमेंट का रोल बढ़ता है वैसे इकोनॉमी धीरे धीरे खर्चा ज्यादा करने लगती है। That is called functional finance. Now the question arises, why functional finance introduced? Market failure. Market failed to control demand and supply analysis. Because what we say, supply creates its own demand. सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। पर क्या हुआ, मार्केट फेल हुआ, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये जो कंसेप्ट है ये टोटली फेल हुआ। एंड ड्यू टू मार्केट फेल्यूर द प्रॉब्लम अराइजेस। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कंसेप्ट ही फेल हुई और इसीलिए मार्केट में प्रॉब्लम अराइज होने लगी। मार्केट में पहला प्रॉब्लम अराइज हुआ कि सप्लाई and demand are unequal. Sometimes supply is more, sometimes demand is more. So it creates market imbalance, market failure. In 2007-2008, USA showed that due to excessive deregulation of financial market can fail. Government was not regulating on the financial market and entire financial market failed. This was a classical study in the USA.
So to stop this market failure, there should be some government control. Second point, importance of fiscal policy. Fiscal policy is much more important. Fiscal policy is much more important. What is fiscal policy? Sacrifice due to taxation and benefit due to expenditure. Sacrifice due to taxation and benefit due to expenditure. आप सैक्रिफाइस क्या करोगे? टैक्स देके सैक्रिफाइस करोगे, और आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? सामने वाला आप पे खर्चा करेगा, सामने वाला है ना गवर्नमेंट. When the government spend money on you, it indicates that sacrifice due to taxation and benefit due to expenditure. This is importance of fiscal policy. Thirdly, aggregate demand. Aggregate demand and aggregate supply. Market creates aggregate demand and market is creating aggregate supply. Now the question arises, aggregate demand means excess demand from the market or overall demand of the market. If aggregate demand and aggregate supply intersect each other, if aggregate demand and aggregate supply intersect each other, this intersection point is known as point of effective demand. In that period, effective demand falls. And that's why it is a duty of government to enhance, to increase this effective demand. And that's why, again, government control required. Budget. To make any full and final budget in economy, again, government control required. When you are publishing any budget, budget is a financial statement of income and expenditure, as you know. Budget is a financial statement of income and expenditure, as you know. So budget will be created by government. So again, government required to create budget. There is a necessity that government must be there who will create a budget. And budget creation is one of the main underlying work of government. Why I'm saying underlying work? Because it is the main work of government to create budget. There are three types of budget: surplus budget, deficit budget, and balanced budget. Each and every government try to make balanced budget because that was a classical phenomena. All these things are okay. But at least you must know that there are three types of budget. And the budget which we are discussing, that was classical, balance, and the classical means balance, surplus, and deficit. In the developing economy, there is a deficit budget. In a developed economy, there is a surplus budget. And BB, balanced budget, it was a classical phenomenon. Income distribution. Income distribution was based on APC, average propensity to consume. Because APC of rich class, APC of poor class is different. Higher the APC, higher the, what do you call, consumption power. Lower the APC, lower the consumption power. Propensity का मतलब है खरीदी करने की क्षमता, एबिलिटी. इन शॉर्ट प्रोपेंसिटी के मतलब अलग निकलते हैं. समझने के लिए एबिलिटी ये मतलब बहुत सिंपल है. हर एक की, जिसको हम लोग हिंदी में धारणा कहते हैं, धारक शक्ति हिंदी में कहते हैं, कंजम्पशन पावर हर एक की अलग अलग होती है. मैं अगर ओला अफोर्ड कर सकता हूं तो आप ओला अफोर्ड कर सकते हो ऐसा नहीं, या मैं ऑटो अफोर्ड कर सकता हूं तो आप ऑटो अफोर्ड कर सकते हो ऐसा नहीं, या मैं रेगुलर ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप रेगुलर ऑटो अफोर्ड कर सकते हो. हर एक की अपनी अपनी कंजम्पशन पावर होती है. कभी कभी क्या होता है, आमदनी अठानी खर्चा रुपया मिलेगा 10 रुपया और खर्चा होगा 50 रुपया. होता है, हमें रेगुलर ऐसा नहीं होता, पर कभी कभार ऐसा हो जाता. तो उतनी भी आपके पास एबिलिटी होती है तो कंज्यूम करने. तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड होता है? टैक्सेस पे. आप बताओगे यानी, तो जो लोग पुअर है, डाउन ट्रोडन है, उन पे टैक्सेस मारो, बराबर ना? या जो रीच है उन पे टैक्सेस मारो. आपका आंसर आपके पास, जो रीच है उन पे टैक्सेस मारो
और वो टैक्सेस कलेक्ट करके पुअर को वो ट्रांसफर कर दे, ताकि रिच और पुअर के बीच की जो खाई है, जो वैली है, वो वैनिश हो जाए, वरना रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर. This thing will happen, and to control this thing, redistribution of income and wealth is required. And who will do redistribution of income and wealth? But all we know, again, government, because government is putting tax on economy, and with the help of tax or with the use of tax, government control the entire economy. Welfare capitalism. Now the question arises, what is welfare capitalism? Welfare capitalism is nothing but to overall development of economy, overall development of capitalist economy. Because you know what happened in capitalist economy, government was not paying any attention, but in welfare capitalism, government needs to pay attention. Like America. America was a capitalist country. Forget about India, we are having a mixed economy. I'm speaking about America. America was a capitalist country. But after Second World War, America changed their scenario, and from capitalist country, they have switched on to welfare-oriented country. Now, to create any welfare, government needs money. You know what is welfare? Government must invest in education, games, sports, cultural activities, and so on. So these things must be required, that by this way, government can control entire economy. Plus, government try to develop the economy with the help of welfare economy. Welfare economy, as we know, development of overall economy. Social objective. Even functional economics is based on social objective. What is social objective? Redistribution of income and health, social security, poverty eradication, medical care for poor people. जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना आई है, उसमें आपको 1 लाख तक का बीमा मिलता है. जो गरीब है उसका 5 लाख तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है. प्राइवेट में भी एडमिट किया तो वो कार्ड होगा आपके पास, तो आपका 5 लाख तक खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी. उसके लिए कुछ इनकम एलिजिबिलिटीज है, यानी पुअर क्लास के लिए गवर्नमेंट ने सब देती है. एजुकेशन, एडेड स्कूल, एडेड कॉलेजेस में फीस कम होती है कंपैरेटिव अनएडेड कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस. इसका मतलब है ओवरऑल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी. Sometimes government put heavy tax on wine and cigarettes to protect people from that. Means if you reduce the price, you are provoking to drink wine. On the contrary, if you increase the tax, you are opposing the people from having the wine or liquor or something else. So this is a social objective, which is a part of controlling ethos, norms, moral, manners, etiquettes, etc. Now, types of fiscal policy. Automatic stabilizer. Some fiscal policies are automatically stabulated. Automatically stabulated means change in government expenditure, tax revenue response to change in national income. As national income changes, government revenue increases. As national income decreases, government revenue decreases. So government revenue and national income are directly related. This is known as automatic stabilizer. So it plays the role of automatic stabilizer. Who plays the role? National income. Along with that, tax revenue automatically increase.
propensity increases along with inflation. Sometimes inflation is a good sign. Sometimes inflation is a bad sign. ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. कभी कभी महंगाई अच्छी होती है. अब बोलोगे सर महंगाई अच्छी कैसे हो? सिंपल बात. 10 रुपए की चीज अगर मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या वो चीज बनाने की मैं कोशिश करूंगा? नहीं. मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है तो मैं क्यों बनाऊंगा? अगर मैं वो चीज बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या मेरे प्रोडक्शन यूनिट में मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट लगेगी? मैं कमोडिटी बना ही नहीं रहा, तो क्या मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट लगेगी? नहीं. क्या मेरे को ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी? नहीं. क्या मुझे वो प्लेस की रिक्वायरमेंट लगेगी जहां मैं काम करूंगा? नहीं. तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए. अभी उल्टा देखो, उस चीज का दाम बढ़ा, मिलने वाले को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, वो और मन लगा के काम करेगा. वो सोचेगा ऐसी मैं और 2-3 चीज एक्स्ट्रा बनाऊंगा. वो कमोडिटीज बनाने जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसको एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी. और वो एक्स्ट्रा लेबर यूज करेगा तो यहाँ के अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार मिलेगा. उसको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट पड़ेगा क्योंकि एडिशनल कमोडिटी, तो और एक ट्रांसपोर्ट वाले को यहाँ पैसा मिलेगा. यानी इसका मतलब है इकोनॉमी धीरे धीरे फ्लोरिश होगी, बढ़ेगी. ये मेरी बात जरा ध्यान रखना. उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी. इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी? डेलिबरेट चेंज इन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. जबरदस्ती टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. डेलिबरेट का मतलब है जबरदस्ती. हम लोग जबरदस्ती चेंज करते हैं. ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता, किया जाता है. कभी कभी आपको करना पड़ता है और इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कभी क्या करते हो, शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको कभी कभी डेलिबरेट टैक्स चेंज करना पड़ता है. मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म पीरियड. कभी कभी शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको डेलिबरेट टैक्स चेंज करना पड़ता है. डेलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड to change in entire tax system. That is called deliberated economy. Along with that, now we are moving to the lesson number 13, types of budget and concept of deficit. Lesson number 13 is types of budget and concept of deficit. As all of you know, there are 3 types of budget: surplus budget, deficit budget, and balanced budget. What is budget? Well, all we know, budget is derived from the word bogetti, which means leather wallet. So budget is nothing but the relation between income and expenditure, or financial statement of income and expenditure. Some are the objectives of public budget. Number 1, allocation of resources. To allocate resources from unproductive sector to productive sector. Resources must be allocated from unproductive sector to productive sector. तो जहां रिसोर्स अलोकेशन की जरूरत है वहां बजट की जरूरत पड़ेगी. बजट क्या करेगा? प्रोडक्टिव सेक्टर पे, जहां प्रोडक्टिव सेक्टर है वहां टैक्स ज्यादा मारेगा. अनप्रोडक्टिव सेक्टर में टैक्स ऑलरेडी देगा. तो लोग अपने रिसोर्सेस रिमोट एरिया में लेके जाए. अनप्रोडक्टिव सेक्टर जो रिमोट एरिया है वहां अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करेंगे तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगा.
अगर कोई इन्वेस्टर मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहता है तो या दिल्ली में या चेन्नई में, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेन एरिया, हार्ट ऑफ कंट्रीज, तो वहां क्या होगा, टैक्स ज्यादा होगा। तो फिर इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ टैक्स कम है। तो रिसोर्सेस मोबिलाइज हुए फ्रॉम प्रोडक्टिव टू अनप्रोडक्टिव एरिया। तो उससे गवर्नमेंट का फायदा ये हुआ कि रिसोर्स अलोकेट हो, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटीज। आपकी पॉवर्टी रिड्यूस। क्यों? आपने क्या किया, रिच पे ज्यादा टैक्स मारा, पुअर पे टैक्स कम मारा। तो जो रिच का पैसा है टैक्स का, वो अपने पुअर पे स्पेंड किया। यानी आपने क्या कंसेप्ट उठाई, जो रिच पर्सन है, जो रिच पर्सन है उस पर ज्यादा टैक्स मारो, और जो पुअर पर्सन है उसका टैक्स बात सुन। और रिच पर्सन का जो पैसा है वो पुअर पर्सन के यहाँ ट्रांसफर करो। तो उससे क्या होगा, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो मैनेज होगी। और इनकम इनइक्वालिटी कैसे मैनेज होगी, मैंने अभी आपको बताया। रिच बिकम रिचर पहले था, पुअर बिकम पुअरर पहले था। ड्यू टू टैक्स सिस्टम दिस एंटायर सिनेरियो चेंज। Reduction of economical growth of GDP results more production, employment generation। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, आपको जीडीपी को बढ़ाना। एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली देश बढ़ेगा, इकोनॉमी एक्सपांड्स, right? Along with that, maintain high level of effective demand। effective demand बढ़ेगी और वो एक हाई लेवल पे मेंटेन होगी। उसके बाद जीडीपी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली टैक्स इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, इस सभी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। ये सब्सिडी कहाँ देनी पड़ती है भाई, आपको मालूम है? जिस एरिया में गरीब ज्यादा है या जो गरीबों के लिए कमोडिटी है, उस कमोडिटी को हम लोग सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी का सिंपल मतलब है कंसेशंस। 10 रुपए का बुक है, 2 रुपए गवर्नमेंट देगा, आपको 8 देना है, या 4 गवर्नमेंट देगा, आपको 6 देना है। इन दैट तो आपको 4 रुपए का कंसेशन देना है। 10 रुपए का बुक आपको 6 रुपए में गिरा, क्योंकि ऊपर का 4 रुपया गवर्नमेंट ने दिया। तो आपके पास बुक तो आया, तो सब्सिडी अच्छा काम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इसके आगे हम लोग क्या कर देखेंगे। अपना मैंने आपको बताया 13 चैप्टर चालू है, उसमें आगे हम लोग देखेंगे कि बाबा बजट, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस मैंने आपको कहा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना। पब्लिक एंटरप्राइज कौन सा है? रेलवे है, मुझे लगता है पब्लिक एंटरप्राइजेस है। बीएसटी है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है। एसटी है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है। पब्लिक स्कूल्स है, पब्लिक कॉलेजेस है। गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया की बात करें तो हमने मनरेगा को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर में भी हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। Along with that, government also introduced employment exchange bureau, where the government is giving you at least surety that they will give you a nice job according to your education. You have to register your name after your graduation, 10th, 12th, whatever it is. You will get employment card. And, when they require any certain person, so you got later from the government,
that in this particular area vacancies are required. So you try your best. This government is directly not giving you a job. They are suggesting you. That is the role of employment exchange people. You have to prove yourself. Along with that, we are discussing on the new question, types of budget. Already I told you balanced budget, where revenue and expenditure is same. Then zero-based budget. Zero-based budget means every year budget change. Means suppose 2022. 2022 at the end of 2022, the entire revenue and expenditure you have to show, and that file is closed. Remaining money, that if the budget is surplus, suppose 5 crore rupees remain, that will not carry forward in the next budget of 2023. 2023, new year, new budget policy. वो कहते हैं ना हमारा हिंदी में नया गेम नया बिडू, इसका मतलब नया ईयर नया बजट, जीरो बेस है ना। जीरो का मतलब है पहले से शुरुआत करो, बोलते हैं ना पुनश्च हरिओम कहते हैं हम लोग संस्कृत में, फिर से शुरुआत करो। इसी तरह से जीरो बेस बजट होता है। जीरो बेस बजट का मतलब ही है कि बाबा 2022 फिनिश, तो 2022 में जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर है वो टैली कर लो, वो फाइल क्लोज। उसका लॉस या उसका सरप्लस नेक्स्ट बजट में आपको कैरी नहीं करना। कैपिटल बजट में क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ कैपिटल की बात होती है इनकम के, और आपको मालूम है व्हाट इज कैपिटल? मशीन्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल। तो कैपिटल बेस्ड बजट में सिर्फ कैपिटल की बात। अगर हम लोग इंडियन बजट की बात करें, इंडियन बजट, तो आपको मालूम है इंडिया में हम लोग जो बजट बनाते हैं वो रेवेन्यू बजट भी है और कैपिटल बजट भी है। रेवेन्यू बजट में आपको मालूम है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग सोचते हैं। और डेफिसिट बजट आपको मालूम है, डेफिसिट बजट में रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। और कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनका जो बजट है वो डेफिसिट बजट है, where the revenue is less and expenditure is much more. Now the last and the best chapter, chapter number 14. As we go on this chapter, our portion finished. Intergovernmental fiscal relation. Now this chapter is not so important this year for Sybcom, but then also I will put light on some factors. Unitary government. Unitary government means all the affairs of entire country are conducted by a single government. That is presidential rule. States are not having any authority. What central government suggests you have to obey. In China also, state governments are not having their own entitlements, their own words to say. So only single central government handle all that. There is no role of state government. UK, France, Italy, China, so many examples I can give you. Then federal government. Federal government means there are 3 tiers government. Number 1, central government. Number 2, state government. Number 3, local government. So state government, that is called federal society, republics. And state government has also their words to say. Local government, Mumbai ke liye BMC, they have their separate words to say.
Central government will in 20, they have their own words to say. So each and every area, it may be central, it may be state, it may be local. The government rules over the market. That is known as federal government, the federal budget. Now, meaning of fiscal federalism. What is fiscal federalism? Division of responsibilities and resources. There is a division of responsibility and resources. Responsibility and resources are distributed equally among local government, state government, and central government. Even the resources are also enjoyed by all these three governments. These three government has a complete right over it. You know, in Mumbai also we observe some area owned by BMC, some area owned by collector, some area owned by state government, and some land owned by central government. Central government की जगह है, ये state government की जगह है, ये collector land है, ये BMC की जगह है. ये कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. फिर इसका मतलब है सिंपली रिसोर्स पे हर गवर्नमेंट का हक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दी. ऐसा नहीं कि सेंट्रल की और स्टेट की कॉमन होती है, ऐसा नहीं होता. ये एरिया सेंटर का है, वो एरिया स्टेट का है, इस तरह से. पर each and every government is getting proper responsibilities. They have to share the responsibilities. The work is also divided. Even taxes are also divided. Central government कौन सा टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, लोकल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, टैक्सेस का लेवल क्या होगा, ये सभी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है. Regulations. There are some rules and regulations that apply to the private firms and individuals. यानी rules and regulations are applied to the private firm, to the private industries, because in federal economy, small industries also plays an important role. Along with that, central government mandate that state local government provide certain services without providing a request plan to all may gives rise problem of federation. Sometimes central government pressurize state government sometime that you have to give a required fund to some industries. This it is a work of state government. अभी राज्य में जो इंडस्ट्रीज चालू है, हर टाइम थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड करेगी, काम स्टेट गवर्नमेंट का. अभी महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज चालू है, सब इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो इंडस्ट्री को हेल्प करने का काम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प नहीं. राजस्थान में कोई प्रॉब्लम तो राजस्थान गवर्नमेंट करेगी, गुजरात में तो गुजरात गवर्नमेंट करेगी. हर टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को पिक्चर में नहीं आएगी. उसके बाद नेशनल एंड लोकल पब्लिक गुड्स. Some goods are national, owned by nation. Some goods are owned by local government. For example, international highways owned by central government. State highways owned by state government. And internal roads, service roads, internal highways owned by local government. Gardens, schools, it's a public commodity, public goods. Anybody can use. अगर गार्डन में फीस है कुछ तो कोई भी जा सकता है, फीस भरो जाओ. Blacks are not allowed, white are not allowed, greens are not allowed. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, दारू पी के नहीं जा सकते, सिगरेट नहीं स्मोक कर सकते, दैट डिफर. पर फलाना नहीं जा सकता, डिमका नहीं जा सकता, ऐसा कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कुछ गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी जाके बैठ सकता है. जैसे अपना लिबर्टी गार्डन है मलाड में, या रेलवे के बाजू में एक छोटा गार्डन है. आपके एरिया में गार्डन होंगे ऐसे छोटे बड़े. कुछ गार्डन को आपको पेमेंट है, ₹5, ₹2, ₹10, जो कुछ इस एरिया के हिसाब से तो कोई भी देगा.
कोई भी आ सकता है, तो वो पब्लिक गुड है। मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, आपके घर में कोई नहीं आ सकता विदाउट अपनी परमिशन। टैक्स कॉम्पिटिशन, देयर आर 3-4 टैक्सेस, मैंने पहले ही कहा। कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कुछ टैक्स लोकल गवर्नमेंट लेगी। तो हमने क्या किया है, टैक्स को बाइफरकेट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग। उनको अपनी अपनी एक अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के हिसाब से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो टैक्सेस आर बाइफरकेटेड। टैक्स सब्सिडीज, कभी कभी क्या होता है, आपको टैक्स सब्सिडी भी देनी पड़ती है। टैक्स सब्सिडी मीन्स reducing some tax burden to make people more effective, to increase the productivity in the labor, to increase the productivity in a company industry. आपको ऐसा कभी ना कुछ नाटक करना पड़ता है। Fiscal decentralization. What do you mean by fiscal decentralization? Expenditure sharing. You have to share the expenditure. Central government share some expenditure to state government, local government sharing the expenditure to state or central government. It's a federal system. Federal is, already I told you, Sarvabhauma, Prajasattak, what we speak in Hindi. These all are Hindi difficult words, and that's why federal is very easy to understand. So in short, we can observe tax sharing. Sometimes tax are shared by state, local, and central government. But these few taxes, central government will keep. These few taxes, local will keep. These few taxes, then state will keep. जैसे GST देते हो, वो बिल मिलता है, समझो आप होटल में खाना खाते हो, बिल आता है, नीचे GST अमाउंट आता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, CGST और SGST, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। समझो एक 16 रुपए टैक्स, तो 8 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट, 8 रुपया स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा बाइफरकेशन वो बिल पे ही करके आता है, आपने देखा होगा। अब समझो 12% टैक्स है, तो 6% CGST, 6% SGST, ऐसे टोटल 12। तो आपका 100 रुपए का अगर बिल है, तो 100 रुपए में आपको 12 रुपए का टैक्स आएगा, यानी आपको उस काउंटर पे 112 रुपए पे करना। आपने जो डोसा खाया, चाय पिया, 100 रुपए का बिल हुआ, तो आपको पे करना पड़ेगा 112 रुपए, बराबर। उसके बाद सप्लीमेंट्री लीव्स। सप्लीमेंट्री लीव्स का मतलब है कभी कभी सेस लगता है, कभी कभी एजुकेशन टैक्स लगता है। दीज आर सप्लीमेंट्री टैक्स। ये सेस जो होता है ना, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। जैसे कोरोना सेस, कोरोना आया 2 साल, सेस लगा। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, सेस लगा। या अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जब को काम कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेस लगा देंगे। वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता। वो इवेंट खत्म हुआ, वो टैक्स सेस हटना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट हटाते की बात अलग है, तो वो हटना चाहिए। बाद में लोकल टैक्सेस, और लोकल एरिया BMC का अलग अलग टैक्स। मुंबई BMC का टैक्स स्ट्रक्चर अलग है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, थाना का टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, थाने BMC का, पुणे BMC का टैक्स स्ट्रक्चर अलग है। तो हर क्या बोलते एरिया अपना अपना एक अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर ग्रांट, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स ऑफर करता है। ग्रांट्स आपको मालूम है, कोई भी काम के लिए हम लोग ग्रांट ऑफर करते हैं। तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स ऑफर करता है। बाद में सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, स्टेट SGST और लोकल यानी सेंट्रल CGST, और दोनों को इंटीग्रेटेड कीजिए, यानी स्टेट और सेंट्रल को, तो बन जाता है IGST, इंटीग्रेटेड GST, बराबर। बाद में फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन 280 आर्टिकल नंबर याद रखना, 280। इस आर्टिकल के तहत आता है
इट एक्ट वाज पास्ड इन 1951, ईयर याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 1951, फिर से ईयर याद रखना। आर्टिकल नंबर 280, इसमें क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट टैक्स प्रोसीजर अलोकेशन शेयर्स, यानी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में आप शेयर क्या रखोगे, इसका कंसेप्ट क्या है, ग्रांट्स एड, इसका बाइफर्केशन क्या रखोगे, ये फाइनेंशियल कमीशन उसका स्पेसिफिक स्टडी करती है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, और कौन सा गवर्नमेंट कितना टैक्स मिलेगा। समझो 100 रुपया, उसमें से 20 रुपीज लोकल को मिलेगा, 20 स्टेट को मिलेगा, 60 सेंटर को मिलेगा, या 100 रुपये में से 30 मिलेगा, या 25 मिलेगा, दैट फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स। In 2014, chairmanship Dr. D.Y. Reddy, former governor of RBI, has submitted a report to the President Pranab Mukherjee December 2014. 2014 की बात, उसमें क्या है, स्टेट शेयर नेट प्रोसीड यूनियन टैक्स रेवेन्यू टू इंक्रीज फ्रॉम 32 to 42। 100 रुपए में से 32 रुपया स्टेट को जाता है, और बचा हुआ पैसा सेंट्रल को जाता था, और बचा हुआ पैसा स्टेट में रखता। 100 में से 32 सेंट्रल को जाता था, बचा हुआ स्टेट में रहता। तो प्रणब मुखर्जी अपने राष्ट्रपति, उनके पास इन्होंने सबमिशन किया 2014 से पहले की बात, कि भाई स्टेट का जो हिस्सा है वो कम करो और सेंट्रल का हिस्सा बढ़ाओ। कितने परसेंट से? 10%। बाद में जो जीएसटी कमीशन फाउंड हुआ, उसमें मालूम है आपको, बाइफर्केशन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और बस यहाँ अपना पूरा पोर्शन फिनिश हुआ। आपको एसवा बीकॉम के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ भी क्वेरी हुआ तो यज्ञ सर से बात करना, यज्ञ सर आपका मेरे से बात करवा के देंगे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।